السلام علیکم۔ آج پیر ہے، مارچ کی 18 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے افغانستان میں کارروائی کی تصدیق کرتے ہوئے ایک بیان میں کہا ہے کہ خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر پاکستان نے افغان حدود میں کارروائی کی ہے۔ بیان کے مطابق اس کارروائی میں حافظ گل بہادر گروپ سے وابستہ دہشت گردوں کو نشانہ بنایا گیا، جو ٹی ٹی پی کے ہمراہ پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں اور پاکستانیوں کی اموات میں ملوث ہیں۔ حالیہ کارروائی میں 16 مارچ کو میر علی میں پاکستان کی فوج کے 7 اہلکاروں نے جان دے دی۔ وزارت خارجہ کے مطابق پاکستان گزشتہ 2 برس سے متواتر افغانستان کی عبوری حکومت کو ان کی سرزمین پر موجود ٹی ٹی پی سمیت دیگر دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں سے متعلق خدشات سے آگاہ کرتا رہا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے بیان میں مزید کہا کہ ٹی ٹی پی کی طرح کے دہشت گرد گروپ خطے کی سیکیورٹی اور امن کے لیے مشترکہ خطرہ ہیں۔ اسلام آباد نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مشترکہ اقدامات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ایسی مشترکہ راہیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے جن سے کوئی بھی دہشت گرد تنظیم افغانستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو خراب نہ کر سکے۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے پاکستان کی جانب سے افغان سرزمین پر مبینہ فضائی کارروائی کی مذمت کی ہے اور اس عمل کو افغانستان کی سالمیت کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ سرحد پار سے کارروائی جیسے واقعات کے بھیانک نتائج نکل سکتے ہیں جن پر قابو پانا پاکستان کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ افغانستان کی وزارت خارجہ نے افغانستان کے صوبوں پکتیکا اور خوست پر پاکستانی فوجیوں کے حملوں کے رد عمل میں کابل میں پاکستانی سفارت خانے کے قائم مقام سربراہ کو طلب کیا اور انہیں ایک احتجاجی مراسلہ دیا۔ حملوں کی مذمت کے ساتھ ساتھ وزارت خارجہ نے پاکستان کو آگاہ کیا کہ افغانستان اپنی سرزمین پر کسی بھی طرح کی جارحیت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے اس سے پہلے شمالی وزیرستان واقعے کی مذمت کرتے ہوئے ہفتے کو پریس کانفرنس کے دوران کہا تھا کہ پاکستان کو افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کا علم ہے اور اس حملے میں ملوث عناصر کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ افغانستان کی طرف سے سرحدی علاقے بورکی میں پیر کی صبح سرحد پار کے یکے بعد دیگرے مارٹر توپ کے گولے فائر کیے گئے۔ ایک گولہ آرا مشین کے اوپر لگنے سے نقصان ہوا، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ مارٹر گولوں سے حملوں کے بعد مقامی ذرائع نے کہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے بھرپور جوابی کارروائی کی گئی۔ بھارت کے الیکشن کمیشن کی جانب سے 19 اپریل کو شروع ہونے والے 6 ہفتے کے انتخابات کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس اعلان کے ایک دن بعد اپوزیشن انڈین نیشنل ڈیولپمنٹ انکلوسیو الائنس نے ممبئی کے شیواجی پارک میں ایک میگا ریلی نکالی۔ اس ریلی کا اہتمام مرکزی اپوزیشن کانگریس پارٹی کے ملک بھر میں 2 ماہ طویل مارچ کے اختتام کے بعد کیا گیا، جس کی قیادت سرکردہ رہنما راہل گاندھی کر رہے تھے۔ یہ الائنس انڈیا نیشنل کانگریس پارٹی کی قیادت میں 28 سیاسی جماعتوں پر مشتمل ہے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان ڈینیل ہگاری نے کہا ہے کہ ان کے فوجیوں نے غزہ کے شفا اسپتال کے احاطے میں ٹارگیٹڈ آپریشن کیا ہے، جس کے دوران فلسطینی جنگجوؤں کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ ہگاری کے مطابق کمپاؤنڈ میں داخل ہونے والے اسرائیلی فوجیوں پر فائرنگ کے بعد جوابی کارروائی کی گئی۔ ترجمان نے مزید کہا کہ حماس کے سینئر دہشت گرد شفا ہسپتال کے اندر دوبارہ منظم ہو گئے ہیں اور اسے اسرائیل کے خلاف حملوں کی کمانڈ کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مریضوں اور شہریوں کو خوراک، پانی اور دیگر سامان فراہم کرنے کے لیے
इंसानी बुनियादों पर कोशिशें की जा रही हैं। हमास की जानिब से इस बयान पर फौरी रद्द अमल सामने नहीं आया। आलमी इदारे सेहत के सरबराह टेड्रोस गैब्रियसिस ने पीर के रोज शिमाली गजा में अशिफा अस्पताल के मकाम पर इसराइली हमले के बाद तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि अस्पतालों को कभी भी मैदान जंग नहीं बनना चाहिए। फलस्तीनी महकमे सेहत के हुक्काम का कहना है कि इसराइली कार्रवाई में मुतअद्दिद हलाकतें हुई हैं और शदीद आग भड़क उठी है। इसराइली फौज ने पीर के रोज गजा के बाशिंदों से मुतालबा किया कि वो इलाके के सबसे बड़े अस्पताल के अंदर और आसपास के इलाकों को खाली कर दें, क्योंकि मरीजों और बेघर लोगों से भरे कॉम्प्लेक्स में लड़ाइयां शुरू हो गई हैं। फौज के तर्जुमान अदराई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि अपनी सलामती को बरकरार रखने के लिए वो फौरी तौर पर इलाका खाली कर दें। उन्होंने वहां मौजूद तमाम लोगों को मगरिब और फिर जुनूब में कायम इंसानी हमदर्दी के इलाके की तरफ जाने की हिदायत की है। बरतानवी खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक एक इसराइली एहलकार ने यह इत्तला दी है कि इसराइल मोसाद सरबराह की क़यादत में एक आला सतही वफ्द आज पीर को कतर भेज रहा है। ये वफ्द हमास के साथ सालिसी मुज़ाकरात में शिरकत करेगा। इन मुज़ाकरात का मकसद गजा में 6 हफ्ते की जंग बंदी को यकीनी बनाना है, जिसके तहत फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद 40 यरगमालियों को रिहा करेंगे। अमेरिका के सदर जो बाइडन और खातून अव्वल डॉक्टर जिल बाइडन आज पीर को व्हाइट हाउस में वीमेंस हिस्ट्री मंथ के हवाले से एक इस्तकबालिये का एहतमाम कर रहे हैं। इंतजामिया का कहना है कि सदर खवातीन की सेहत से मुताल्लिक तहकीक और अब तक किए गए इंतजामी इक़दामात के सबसे जामे प्रोग्राम का ऐलान करेंगे। सदर बाइडन ने सेंट पैट्रिक डे के सालाना इस्तकबालिये के दौरान अमरीका और आयरलैंड के दरमियान एक सदी के सिफारती ताल्लुकात के तनाजुर में इतवार को आयरलैंड के रहनुमा लियो वरदाकर का व्हाइट हाउस में खैर मकदम किया। सदर बाइडन ने खासतौर पर यूक्रेन में रूस की जंग के खिलाफ मुत्तहिदा मौक़िफ़ का जिक्र किया। सदर ने कहा कि वरदाकर और मैं गजा में इंसानी इमदाद को बढ़ाने और जंगबंदी का मुआहदा करने की फौरी ज़रूरत के बारे में मुत्तफ़िक़ हैं। वरदाकर ने फ़लस्तीनी कौस के लिए आयरिश लोगों की हमदर्दी का इजहार किया। व्लादिमीर पुतिन एक मरतबा फिर रूस के सदर मुंतखब हो गए हैं। इस बारे में दुनिया भर का रद्द अमल सामने आया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दोस्तों और हलीफों ने उनकी इंतखाबी जीत पर उन्हें फौरी तौर पर मुबारकबाद दी है, लेकिन मगरबी रहनुमाओं ने इसे गैर कानूनी इंतखाबात करार देते हुए इसकी मजम्मत की है। बीजिंग ने पुतिन को मुबारकबाद देते हुए कहा कि चीन और रूस नए दौर में जामे स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शिराकतदार हैं। बोस्निया के सर्ब रहनुमा मिलोराद डोडिक ने कहा कि सर्ब अवाम ने सदर पुतिन की फतह का खुशी से इस्तकबाल किया है। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो ने कहा कि हमारे बड़े भाई ने फतह हासिल की है, जो दुनिया के लिए एक अच्छी बात है। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इस नतीजे को गैर कानूनी करार दिया। बरतानिया के वजीर खारजा डेविड कैमरॉन ने कहा कि ये गैर कानूनी इंतखाबात हैं और ये आज़ादाना और मुनसिफाना नहीं थे। अतालवी वजीर खारजा एंटोनियो ताजानी ने कहा कि इंतखाबात न तो आज़ादाना थे और न ही मुनसिफाना। चेक के वजीर खारजा जॉन लिबाउस्की ने इंतखाबात को मजाक और पैरोडी करार दिया। यूक्रेन के हुक्काम ने बताया है कि उसके फजाई दिफाई निजाम ने यूक्रेन के 9 इलाकों में दागे गए 22 में से 17 रूसी ड्रोन्स को मार गिराया है। इस हमले के नतीजे में पीर की सूबे एक रिहायशी इमारत में आग लग गई। मकामी हुक्काम ने बताया कि क्रेविरीह के मरकजी शहर में आग से किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली।
किरोवोहाट के गवर्नर एनडी रॉयकोविच ने टेलीग्राम मैसेजेस पर कहा कि वस्ती किरोवोहाट के इलाके में निजी सनती तनसीबात और करीबी रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं है। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने जनूबी कोरिया के दारुल सोल में शुरू होने वाली 3 रोज़ा समिट फॉर डेमोक्रेसी के इफ्तिताही इजलास के दौरान कहा कि इंसानी हकूक के मुहाफिजों पर ऑनलाइन हमलों को रोकने में मदद के लिए वाशिंगटन टेक कंपनियों के लिए अपनी नौयत की पहली गाइडलाइन जारी कर रहा है। उन्होंने दीगर ममालिक पर भी जोर दिया कि वो जमहूरियत को लायक डिजिटल खतरात से निमटने की जिम्मेदारी में शामिल होकर इज्तिमाई और फौरी इक़दाम करें। इस मौके पर जनूबी कोरिया के सदर योन सॉक यूल ने जमहूरियत की तश्कील में टेक्नोलॉजी के अहम किरदार पर जोर दिया। ये समिट अमेरिकी सदर जो बाइडेन का इनिशिएटिव है, जिसका आगाज सन 2021 में किया गया था। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफाएल ग्रोसी ने पीर को बगदाद में इराक के वजीर आज़म से मुलाकात की ताकि मुल्क को पुरअमन जौहरी प्रोग्राम तैयार करने में मदद फराहम की जा सके। इराकी वजीर तालीम नईम अल अबूदी ने ग्रोसी और इराकी वजीर आज़म मोहम्मद शिया सुडानी के दरमियान मुलाकात के बाद सहाफ़ियों को बताया कि हमने इराक में कई मंसूबों पर बातचीत की है, जिसमें पुरअमन मकासद के लिए एक जौहरी रिएक्टर की तामीर भी शामिल है। ग्रोसी ने कहा कि इराकी माहिरीन की एक टीम चंद दिनों में वियना में एजेंसी के हेडक्वार्टर का दौरा करेगी, जिसका मकसद खित्ते में जौहरी तवानाई में बढ़ती हुई दिलचस्पी के तनाजुर में इराकी पुरअमन जौहरी प्रोग्राम का रोड मैप तैयार करने के लिए मुलाकातें की जाएं। शिमाली कोरिया ने पीर के रोज मुख्तसर फासले तक मार करने वाले मुतअद्दिद बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए हैं, जबकि तज्जियाकारों का कहना है कि अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन के जनूबी कोरिया के दौरे के मौके पर तवज्जो मबसूल कराने के लिए यह सोचा समझा कदम था। ब्लिंकन तीसरे डेमोक्रेसी सरबराही इजलास में शिरकत के लिए जनूबी कोरिया में हैं। ब्लिंकन ने शिमाली कोरियाई बैलिस्टिक मिसाइलों के तजर्बे की मसम्मत की है। ईरान में नए साल नौरोज से कबल मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में सड़कें और बाजार खरीदारों से भरे हुए हैं। नए साल का आगाज बुध से होगा, जो बहार का पहला दिन भी है। ईरानी नौरोज से कई हफ्ते पहले अपने नए साल के रिवायती दस्तरखान के लिए मिठाई, खुश्क मेवाजात और दीगर अशिया की खरीदारी शुरू कर देते हैं। नौरोज के मौके पर स्कूल और दफातर 4 दिन के लिए बंद रहेंगे। इस मौके पर बहुत से लोग छुट्टी मनाने के लिए सफर भी करते हैं। नौरोज ईरान के हमसाया ममालिक अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के अलावा इराक, शाम और तुर्किया के कुर्द लोग भी मनाते हैं। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इज़हार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन काविशों को जारी रखिएगा। न्यूज प्रोड्यूसर आयशा इरफान और न्यूज एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।